Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 3, 4 और 5 श्लोक पे चर्चा करेंगे। मैं 3 श्लोक इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि 3 और 4 जो श्लोक है वो सब हमारी परिस्थिति का वर्णन करता है, सांसारिक लोगों की, और 5वां श्लोक जो है तो वो इसके उपदेश की और दिशा में जाता है, जहां भगवान की महिमा है।
और भगवान की महिमा के बिना हम कुछ भी कर लें, इसमें आनंद नहीं है। भगवान की महिमा में, श्रीमद् भागवत मतलब भगवान की महिमा। लेकिन प्रभुपाद जी ने तीसरे और चौथे श्लोक में भी बहुत बार कोट किए हैं, तो हम तीसरे और चौथे श्लोक में लेकर फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण। संक्षिप्त में, निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्त्वस्ति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्त्वस्ति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्त्वस्ति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। और पांचवे में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम्। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्ता वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। उमावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय।
ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 3, 4 और 5 श्लोक पे चर्चा करेंगे। मैं 3 श्लोक इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि 3 और 4 जो श्लोक है वो सब हमारी परिस्थिति का वर्णन करता है, सांसारिक लोगों की। और 5वां श्लोक जो है तो वो इसके उपदेश की और दिशा में जाता है, जहां भगवान की महिमा है। और भगवान की महिमा के बिना हम कुछ भी कर लें, इसमें आनंद नहीं है। भगवान की महिमा में श्रीमद् भागवत मतलब भगवान की महिमा। लेकिन प्रभुपाद जी ने तीसरे और चौथे श्लोक में भी बहुत बार कोट किए हैं, तो हम तीसरे और चौथे श्लोक में लेकर फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण। संक्षिप्त में निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्त्वस्ति तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्त्वस्ति तेषां प्रमत्तो निधनं
पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्व सत्त्वस्वी तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। और पांचवे में तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ यानी गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत होने में रहने में तथा दिन में धनो उपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ यानी ईर्ष्यालु गृहस्थ का मतलब गृहमेधी। ऐसे गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धन उपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। और आगे आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्याम्भवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। और आगे फिर से मैं ये पढ़ता हूं। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम्भवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। फिर से, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हम 3 और 4 थोड़ा क्विकली लेकर 5वें पे चर्चा करेंगे। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिनों में धन उपार्जन और उससे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानवता सभ्यता श्रीमद् भागवत की विचारधारा द्वारा निंदित है, क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है। क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ है, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी
लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह का जीवन उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। यह भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन सोकर तथा मैथुन में रत रहकर रात्रि को तथा और संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके दिन को बिता देते हैं। ऐसा करके भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में कर दिया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। आगे, यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। यहाँ ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह भौतिक जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु निर्धारित करती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं ये सेंटेंस, मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात संतानें, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। मनुष्य को इस तथ्य का पर्यालोचन कर लेना चाहिए कि उसके पिता पहले दिवंगत हो चुके हैं, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है और इसी प्रकार उसकी संतानें भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मृत्यु को प्राप्त होंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूढ़ लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा ऐसा प्रदर्शित ऐसा अल्पज्ञान निश्चय ही पथभ्रष्ट करने वाला है और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है। एक तरफ बताया है करोड़ों वर्ष है, एक तरफ बताया है स्वप्न तुल्य है। दोनों सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये स्वप्न तुल्य है, लेकिन भौतिक जीवन की दृष्टि से ये करोड़ों साल है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहता है और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुलबुलों के समान है, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, संतानें, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों को की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति नष्ट कर देते हैं।
जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं संतानें न केवल विनाशील है, अपितु भौतिक अस्तित्व की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। बिल्कुल आज की परिस्थिति है। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। शव की, हाँ, ये आज की दुनिया का जो विकास हो रहा है सिर्फ बॉडी के डेवलपमेंट, बॉडी के विकास के लिए। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त है और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। तो ये बहुत प्रैक्टिकल, इट्स ए बिटर ट्रूथ आज के समाज की, आज के गृहस्थ धर्म की, मनुष्य जीवन की जो घटनाएं घट रही है कलयुग में। ज्यादातर 99% लोग की ये समस्या ये है। ये 2 श्लोक में प्रभुपाद जी ने अनुवाद और तात्पर्य में बताया है कि आज के जीवन का लक्ष्य नाशवंत की ओर है। वो कितना भी पैसा कमा ले, मृत्यु सर्व हरस्य हम। और पैसा किसी लिए कमाते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए मतलब वो शरीर का पालन पोषण करने के लिए। तो शरीर का नेसेसिटी, शरीर को पालन पोषण करना, शरीर की इंद्रियों को आनंद देना। तो प्रभुपाद जी समझाते कि एक डेड बॉडी को मेकअप करने, मतलब अलंकृत करने के समान है। डेड बॉडी, इसकी जरूरत है, नेसेसिटी है, लेकिन नेसेसिटी इतनी जगह में मर्यादित रहनी है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु कौशलम। ये सब एक प्रमाण में, एक इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म तक, यानी कि शरीर की आवश्यकता, जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं शरीर को, आत्मा और शरीर को बनाए रखने के लिए, वहां तक जरूरी है। और उसके बाद अगर हम परिवार को विनाशशील देख रहे हैं, यहाँ पे परिवार और परिवार के रिश्ते को विनाशशील देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम परिवार को बचाना चाहते हैं। परिवार को, क्योंकि परिवार के अंदर भी, हर एक परिवार के हर एक सभ्य के अंदर भी आत्मा होती है, और आत्मा भगवान के अंश होने के कारण हमारी आत्मा से आत्मा के प्रति एक आसक्ति बनती है। ये नेचुरल भौतिक प्रकृति का एंडेवर है। लेकिन इससे हमें ये समझना है कि अगर हम सही में अपने परिवार को प्रेम करते हैं, सही में अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनको भगवत भक्ति सिखाएं, तो उनको भगवत भक्ति में ले आए। जब तक वो भगवत भक्ति में नहीं ले आते तो वो विनाशशील रहेगा, आसक्ति रहेगा, कर्म बंधन रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण रहेगा। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो है एक एक चीज टिक करते हैं। आपको मालूम है ये कैसा, इसको समझना है कि जैसे कि कोई एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है तो तुरंत डॉक्टर फटाफट उसको पूछते क्या समस्या है, उसके बारे में जो जो उसके साथ कनेक्टेड चीज हो सकती है, उसका कारण हो सकता है, हर एक कारण के लिए फटाफट अलग अलग ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे ऐसे फटाफट कर लेते हैं आईसीयू के अंदर। तो ये कारण ढूंढते हैं कि ये व्यक्ति को इतना रोग लग गया, इतनी इमरजेंसी आ गई, तो उनका क्या कारण है। तो जब कारण ढूंढ लेते हैं फिर कारण की दवा करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि संसार में हम रहते हैं, हम कारण नहीं ढूंढते हैं, हम वो समस्या के साथ जीवन बिताते हैं। हम इमरजेंसी समस्या है,
ये हमारा मनुष्य जीवन एक इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी के साथ हम समस्या बिताते हैं, क्योंकि हर समय ये मृत्यु जगत है, यहाँ मृत्यु अवश्य अंभवी है। तो यहाँ पे कैसे भी, जैसे दिवंगत दादा परदादा चले गए, पिता भी चले गए, तो हम भी चले जाएंगे और हमारे संतानें भी चली जाएगी। तो धीरे धीरे हमें ये समझना है कि जिसकी मैं देखभाल कर रहा हूं, ये सब तो नाशवंत है। असली कारण क्या है मेरी समस्या का? असली कारण क्या है? ये हर रोज मुझे अलग अलग तरह की समस्याएं आती है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्। तो हर रोज सुबह दोपहर शाम होती है और समस्याएं लेकर आती है, और एक समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो दूसरी समस्या खड़ी रहती है। ये समस्याओं को मैं कैसे बाहर निकलूं? तो सबसे पहले बताते हैं कि इसको बाहर निकलने के लिए जो समस्याओं में नहीं है उसके साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। जैसे कि नदी में पानी की बहाव आने वाली है, तो हमारी बोट को हम क्या करना चाहिए? बराबर ठीक से एंकर से बांध देना चाहिए। अगर एंकर से बांध नहीं देंगे तो बहाव में चला जाएगा। समय के बहाव में, यहाँ भी पानी की बहाव की जगह यहाँ समय का बहाव चल रहा है, और समय का बहाव हमारा हमारे आयुष्य लेकर चला जाएगा। तो इसलिए हमारी एंकर, हमारी बोट जो है, ठीक से एंकर के साथ बंधी हुई होनी चाहिए। और वो एंकर क्या है? जो बहाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। कितना भी बहाव आए उसको प्रभावित नहीं कर सकता। उसको डुबो भी दे, वापस उसको बाहर ले आएगा, क्योंकि वो एंकर जो है सक्षम है। तो एंकर बहाव से प्रभावित नहीं होता। जो समय से, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, उसके साथ हमारा कनेक्शन परमानेंट होना चाहिए। तो गुरुजन जो है, गुरुवर्य है, तो वो अपना जीवन हायर कॉन्शियसनेस में बिताते हैं। तो उसके साथ, और हमारे शास्त्र है, सनातन शास्त्र है, तो उनका उपदेश के साथ हमारा जीवन ठीक से एंकर लगाकर चलना चाहिए। जब ये साधु गुरु शास्त्र की एंकर नहीं चलेगी तो समय का बहाव हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा, और मृत्यु की ओर जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर से जन्म होगा, फिर से माता की वुम में जाना पड़ेगा, और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर से गधे की तरह कमाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। फिर से पत्नी आएगी, फिर से बच्चे आएंगे, फिर से उनकी जरूरियात आएगी, उनको सांसारिक जरूरियात पूरी करेंगे, फिर से आसक्ति आएगी, फिर से मोह आएगा। तो इसका तो कोई अंत नहीं है। हमारा बैंक बैलेंस पूरा जीवन में, हम 60-70 साल में कितना भी पैसा कमा के बैंक में जमा कर दिया, लेकिन ये जब सांस बंद हो जाती है तो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें, ये जरूरियात है, मिनिमम जरूरियात है। मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि हम अपने शरीर को इतना खिलाएं कि जितना आत्मा और शरीर को साथ में रहने के लिए जरूरियात है। हम शरीर को टंग टेस्ट में, इंद्रिय तृप्ति में इतना खिला देते हैं कि फिर शरीर के अंदर क्या बोलता है, मद आ जाता है, वो सो जाता है। सो के फिर आज ये 2 श्लोक पढ़े, ऐसे अपने निंद्रा में, मैथुन में अपना समय नष्ट कर देता है। फिर उठता है, भूख लगती है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। तो ये हमारा विष चक्र है। ये विष चक्र से हमें बाहर निकलना है। ये विष चक्र प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, इससे कोई नहीं बच पाएगा। और जितना जितना उम्र बढ़ेगी तो ये विष चक्र और पावरफुल दिखाई देगा, और हमारी दुर्बलता, हमारी निर्बलता ज्यादा प्रतीत होगी। इसीलिए हमें बचपन से भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए। और इसके साथ हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि कभी भी साधु गुरु शास्त्र को छोड़ने का स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। जैसे कि आईसीयू में डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका ब्लड टेस्ट ठीक है, इसका यूरिन टेस्ट ठीक है,
इसका एक्सरे ठीक है, फिर भी इसको प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो फिर से एमआरआई करो, ढूंढो कहाँ से प्रॉब्लम है, उसका अलग अलग ऑर्गन चेक करते हैं, फिर ऑर्गन से देखते हैं कि किसी कहाँ भी ब्लॉकेज नहीं है, कहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ भी। तो हमारे जीवन में ये सभी चीज 1 बाय 1 हमें चेकआउट करना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो पशु योनि में भी है, मैथुन तो पशु योनि में भी है, तो धर्मो ही तेषाम अतिको विशेष, क्योंकि पशु धर्म का अनुशासन नहीं करता। जो मनुष्य जीवन है तो वो धर्म क्या है, कहाँ उसको ढूंढने जाए, कहाँ उसका मापदंड है, वो धर्म कैसे प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है। तो जब हम गीता पढ़ेंगे, जो प्राथमिक जीवन का एक क्या बोलता है कि एक बुकलेट है कि जहां से हम अपना जीवन पूरा जीवन चला सकते हैं, उसके अंदर देखेंगे तो पता चलेगा मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेतु कौन्तेय जगत विपरिवर्तन, मेरी अध्यक्षता में पृथ्वी काम कर रही है। जब तक हम भगवान की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते तब तक प्रकृति के 3 गुण हमें पटकाते रहेंगे। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, ये प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर ये समस्या हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार लांग दी जाती है। न कोई नहीं इच्छता के बुढ़ापा है, कोई नहीं इच्छता के समस्या है, कोई नहीं इच्छता के मृत्यु आए, लेकिन फिर भी आती है। तो ये समस्या का जो निकाल करता है वो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने क्लास में एक शब्द यूज किया, जीवन छगो, उसने जीवन हासिल कर दिया, उसने बुद्धिमत्ता का काम किया। तो बुद्धिमत्ता का काम के लिए ये कार्य करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने बहुत ट्रांसपेरेंट, तात्पर्य में ट्रांसपेरेंट पिक्चर रजू किया है। प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य जो अभी हमने 2 श्लोक में पढ़े, एक भी वाक्य को हम चैलेंज नहीं कर सकते इस संसार में। ये हर एक की समस्या 99.99%, लेकिन 0.001% जो लोग हैं उसके लिए ये सॉल्यूशन नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि एक्चुअल क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर हम फिर से चर्चा करेंगे। तात्पर्य 5वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं, 215। हे भरतवंशी, अनुवाद और तात्पर्य, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, यानी कि हम रोग लेकर आईसीयू में दाखिल हुए हैं लेकिन ये रोग से बाहर आने का इच्छुक है, तो हम किसके पास गए, उसके एक्सपर्ट डॉक्टर के पास। किसके पास गए, वो डॉक्टर जो हमारे शरीर के विज्ञान को जानता है, वो डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी तहकीकात कर सकता है। हम उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कि हम हाईवे पे जाते हैं तो कार बिगड़ गई, अगर हम कार में हाईवे पे जाते हैं, कार बिगड़ गई तो कार हम चलाना सीखे हैं, कार चलाना हमें मालूम है, लेकिन कार बिगड़ गई तो कार के मशीन को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हम ढूंढते हैं, सब तो बराबर, इंजन बराबर लगता है, कनेक्शन बराबर लगता है, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही, क्या बात है। लेकिन उसी समय अगर हम एक मैकेनिक को बुलाए, एक मैकेनिक भी कार के इंजन को देखेगा, हम भी कार के इंजन को देखेंगे, लेकिन मैकेनिक कार का डॉक्टर है तो उनको तुरंत पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो इसका कारण ये हो सकता है, तुरंत फटाफट वो कार्य करेगा, कार स्टार्ट हो जाएगी, कार फिर चलने लगेगी। ये मैकेनिक को दिखता है, मैकेनिक भी इंजन देख रहा है, हम भी इंजन देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। ठीक उसी तरह कि इस संसार की समस्या है जो हमें सब दिखाई देती है, लेकिन ये समस्या का इलाज हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन जो साधु गुरु शास्त्र है, साधु है, गुरु है, उनको इसका इलाज मालूम है, लेकिन वो इलाज मालूम है, लेकिन व्यक्ति को अपने रोग को जानकर आईसीयू में यानी कि आध्यात्मिक अस्पताल में जाना तो पड़ेगा, उसको अपने गुरु के पास जाना तो पड़ेगा।
उसको अपने डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक तो समस्या उसको मशीन की तरह सुबह दोपहर शाम मशीन की तरह उसका, जैसे कि हमारा धान चक्की में डालते हैं तो पीस पीस कर आटा बन जाता है, वैसा मनुष्य जीवन हम समय के बहाव में आटा बना देते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि गेहूं के अंदर शक्ति कहाँ छुपी हुई है। हम गेहूं खा लेते हैं, गेहूं की शक्ति का उपयोग कर लेता है हमारा शरीर, लेकिन वो गेहूं के दाने के अंदर वो शक्ति कहाँ है जो हमारे शरीर को ताकत दे, वो हम देख नहीं पाते। वो शक्ति देखने के लिए वो शरीर को क्या चाहिए, उसको क्या, कहाँ से शक्ति मिलेगी, कहाँ से पावर मिलेगा, वो देखने के लिए साधु गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि कार का डॉक्टर और ड्राइवर का डॉक्टर दोनों अलग अलग होता है। कार का भोजन और ड्राइवर का भोजन दोनों अलग अलग होता है। कार को पेट्रोल और ऑयल चाहिए और ड्राइवर को दाल भात शाक रोटी चाहिए। हम दाल भात शाक रोटी में सैकड़ों साल ढूंढते रहेंगे तो ऑयल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, और ऑयल और पेट्रोल में हम हजारों साल तक ढूंढते रहेंगे तो दाल सब्जी नहीं मिलने वाला है। दोनों का खुराक अलग है। कार का खुराक अलग है और ड्राइवर का खुराक अलग है। हमारी आत्मा का खुराक अलग है, हमारा शरीर का खुराक अलग है। शरीर को खाने की आवश्यकता अलग है, शरीर की जरूरियात अलग है और आत्मा की जरूरियात अलग है। ये पहले हमें जान लेना चाहिए, और वो जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी एक शरीर है और ड्राइवर आत्मा है। जहां से आत्मा निकल जाता है वो डेड बॉडी है। जब डेड बॉडी है तो क्या चला गया, तो वो आत्मा चलेगी। तो वो आत्मा का खाना क्या था कि जो नहीं मिला इस शरीर में, वो शरीर तो नष्ट हो गया। समय के बहाव ने, प्रकृति के 3 गुणों ने शरीर को तो नष्ट कर दिया, लेकिन वो आत्मा जो शाश्वत है वो कहाँ चला गया? क्या उसको फिर से माता की वूम में जाना पड़ा? क्या फिर से उसको ऐसी जगह में कोई शरीर ले सकते हैं कि जहां से उसको जन्म मृत्यु, फिर से मृत्यु ना आए? तो उसके लिए हमें आत्मा के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो आत्मा के डॉक्टर का मतलब है साधु गुरु और शास्त्र, और वो असली समस्या का इलाज है। श्रीमद् भागवत जो है इसमें हर एक समस्या का इलाज है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद आने वाली समस्याओं का इलाज भी श्रीमद् भागवत में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम एकेडमिक पढ़ाई के लिए 15 साल गंवा देते हैं, जो सिर्फ हमारा 6 घंटे का खाना देता है, फिर वो कचरे में टट्टी की स्टूल की तरह चला जाता है। उसके प्रति हमारा कोई नहीं। एक ऐसा मशीन कि जिसको हम ड्राई फ्रूट भी खिलाए, कितना भी महंगा केसर पिस्ता बादाम भी खिलाए, लेकिन वो 6-8 घंटे में कचरा निकाल देता है। तो वो हमारा समय नष्ट कर रहा है। लेकिन हमारी समस्या इससे ऊपर है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से लांघ सके, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। भगवान का श्रवण करना है। भगवान का श्रवण करने से क्या होगा? सबसे पहले तो हम शुद्ध हो जाएंगे। भगवान का श्रवण करने से हम शुद्ध, परम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध क्यों होना है? क्योंकि हम भौतिक कलमश में हैं। भौतिक कलमश का मतलब क्या है? हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं का विनाश किसी की अपनी स्व ताकत से नहीं हो सकता। भौतिक इच्छाओं का विनाश भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन से शुरू होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि उन्होंने पाश्चात्य जगत में प्रचार किया तो किसी को पहले भागवत नहीं सुनाया, किसी को गीता नहीं सुनाई। वो तो जाके गार्डन में जाके हरे कृष्ण कीर्तन किया।
तो कीर्तन करने से क्या हुआ, न चाहते हुए भी उसके साथ संगीत में लोग नाचने लगे, और नाचते वो सुन रहे थे। सुन क्या रहे थे, भगवान का अमृत। तो श्रवण ने उनको चेंज कर दिया। तो श्रवण बहुत प्राथमिक है और बहुत आवश्यक है। उसके बाद महिमा गायन। महिमा गायन किसको कह सकते हैं? हम संसार में महिमा, कोई भी हमारा बढ़ावा कर दे ना, तो वो हमारा मित्र बन जाता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, हमें पता नहीं होता है। वो अपने मतलब के लिए सांसारिक रिश्ता में हम सब जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी ने तो वहां तक बताया, इवन पति पत्नी का रिलेशन, दोनों अपूर्ण है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, जरूरियात है, इसीलिए एक दोनों को प्रेम करते हैं। क्योंकि इसीलिए ये काम कहा जाता है, क्योंकि एक दोनों की मतलब पूरा होता है। आध्यात्मिक जगत में क्या है कि वहां मतलब की बात नहीं, वहां एक दूसरे की आवश्यकता नहीं, वहां सिर्फ प्रेम है। प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? त्याग और सेवा से। त्याग प्राथमिकता है, लेकिन विरक्ति जो है परिपक्वता है। त्याग करना पड़ता है, विरक्ति आ जाती है, और विरक्ति जब आ जाएगी तब हम सेवा करेंगे, सेवा कर पाएंगे ठीक से सेवा, तब हम विचलित नहीं होंगे, हमारी इच्छाएं विचलित नहीं होगी विरक्ति से। विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक शरीर को लेके जंगल में चले जाए। विरक्ति का मतलब है युक्त वैराग्य। हम जाने कि ये सब टेम्पररी खेल है, 10, 20, 25, 50 साल, 100 साल का खेल है। ये नाटक कर रहा हूं मैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, शरीर के सभी रिश्तों के साथ। एक नाटक है, ये ड्रामा है, और मैं एक पिता का ड्रामा कर रहा हूं, पति का ड्रामा कर रहा हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये नहीं है। अगर मैं इनको ज्यादा प्रेम करता हूं, पत्नी को, बच्चे को, तो उनको मेरे लक्ष्य के साथ में लेके चलना है। और वो क्या है? परम लक्ष्य, भगवान की महिमा। तो कई लोग क्या है कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति उसका बढ़ावा कर देता है ना, तो खुश हो जाता है। कई उससे ऊपर के लोग क्या है कि उसको कोई बड़ा आदमी अगर उसका बढ़ावा कर देता है तो खुश हो जाता है। कई लोग और क्या है कि कोई प्रधानमंत्री उसको बहुमान दे दे, पद्मश्री, पद्म चक्र दे दे, तो वो खुश हो जाता है कि भारत के बड़ा प्रधान ने मुझे मेरा बढ़ावा किया। तो ये एक अलग अलग लेवल है। और उससे ऊपर भक्त क्या है, तो कई कर्मी भक्त, कर्मी लोग हैं, ज्ञानी लोग, अरे कोई देवतागण उनकी सराहना कर ले, कोई देवतागण उसको वेलकम कर दे, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन भगवान का भक्त जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं करता तब तक वो खुश नहीं रहता। उसकी इच्छा भगवान को प्रसन्न, उसको मालूम है मेरी प्रसन्नता कोई भी नहीं कर सकता जब तक मैं भगवान को प्रसन्न करूं, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो मेरा जीवन का लक्ष्य योग्य है। अगर कोई शुद्ध भक्त, मेरे गुरुजन अगर बोले कि तुम सही में बहुत सिंसियर भक्ति कर रहे हो, तो मेरा जीवन सफल हो गया। हमारे गुरु महाराज इस होरीनेस जयप्रताप का स्वामी महाराज बांग्लादेश में एक भक्त के घर गए थे, मैंने पहले शायद बताया था। एक भक्त के घर गए, बहुत गरीब था वो, फार्मर था, खेडूत था, तो उसके पास जमीन भी नहीं थी, इतना गरीब खेडूत है। लेकिन क्या करता है वो, तो जब नदी की बाढ़ चली जाती है तो कुछ बीच बीच में कुछ जगह सूख जाती है, उसमें जाके वो खेती करता है। वो जमीन उसकी नहीं है, नदी का पानी जब सीजन आएगी तो पानी आएगा, वो जमीन फिर चली जाएगी। तो ऐसी बीच में, नदी के बीच में जो जमीन रह जाती है सूखापन में, उस जमीन पे जाके खेती करता है, वहां छोटी सी झोपड़ी बांधता है, वहां रहता है अपने परिवार के साथ। जब समस्या नहीं है तो कुछ खेती का गुजरान करके अपना जीवन भरण पोषण करता है। जब बाढ़ आती है तो फिर बाहर आ जाता है नदी से। तो ऐसे वो अपना जीवन, मतलब इतना गरीब अवस्था में था। और ये हमारे गुरु महाराज के शिष्य था, क्योंकि बहुत शुद्ध व्यक्ति था। तो उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज समझ सकते हैं हमारी परिपक्वता, तो गुरु महाराज से प्रार्थना की
कि आप हमारे घर पधारिए। अभी नदी के बीच में जाना है, वहां तो कोई बस रोड जाता नहीं है, वहां तो नदी सूखी है, रमल है, चलने के लिए भी थकान लगती है। नदी के अंदर आधा किलोमीटर और जाना, 1 किलोमीटर। तो वो बैलगाड़ी लेकर आया और गुरु महाराज को लेके नदी के बीच में अपनी झोपड़ी में गुरु महाराज को लेकर गया। और गुरु महाराज जैसे वहां प्रवेश किए तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु महाराज मैं आपके चरण प्रक्षालन करना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं। तो वो रोने लगा कि मेरे घर गुरु पधारे हैं और उनकी चरण धूलि मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। जब उनकी आंखों में आंसू आया, गुरु महाराज ने देखा तो गुरु महाराज समझ गए कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। फिर गुरु महाराज ने भगवान का, उनके घर में जो मंदिर था छोटी सी झोंपड़ी में, वो मंदिर में भगवान का दर्शन किया। राधा कृष्ण की डीटी थी, गौर निताई की डीटी थी, उनको देखा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो रहा है, ऐसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा शिष्य पाकर मैं पवित्र हो रहा हूं। भगवान ने मुझे गुरु के जरिए भेजा है, लेकिन मैं ये शिष्य को प्रणाम करने के लिए करना चाहिए मुझे। ऐसा शिष्य है, ऐसी उनकी भक्ति है। गुरु महाराज वो अर्च विग्रह को देख के वो गदगदित हो गए कि क्या भक्ति है। और क्या फिर उनकी पत्नी थी, वो गुरु महाराज के लिए कुछ भोग बनाई, भगवान को ऑफर किया। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा प्रसाद मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। ये गुरु महाराज ने कहा। जब गुरु महाराज ने ये सब बातें बताई, किसको बताई? हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज को। हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज को ये बात बताई कि ऐसा शिष्य, ऐसा परम भक्त इस जगत का नहीं है। इतना गरीब है लेकिन कितनी उच्च सर्वश्रेष्ठ भक्ति है उनके पास। तो भक्ति विकास महाराज ने कहा मुझे भी उनके पास जाना है, भले आपका शिष्य है, मुझे भी, मैं भी वहां जाना चाहता हूं। तो हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज भी वहां गए बाद में, कुछ समय के बाद। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन किया, उन्होंने उनके ऊपर अपनी बुक में एक चैप्टर लिखा वो भक्त के ऊपर। और वो महाराज ने कहा कि ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति हम संसार में नहीं देखते। तो जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती है उतनी भक्ति की परिपक्वता बढ़ती है। हमें सामान्य लोगों का बढ़ावा से, अरे आप बहुत ठीक हो, आप हमारा बहुमान करते हो तो हम आपको हमारे साथ ही रखेंगे, नहीं। भक्ति में जो हमारा बढ़ावा करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। भक्ति में जो हमारी गलती निकालते हैं वो हमारा सही में कल्याणकारी मित्र है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि भगवान की महिमा गायन, हमें भगवान की महिमा गायन करनी है। हमें कोई सामान्य व्यक्ति की, सामान्य राष्ट्रीय नेता की या कोई देवी देवता का महिमा गायन करेंगे तो हम उसके पास जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान्य पितृ यान्ति पितृवान, अलग अलग ही लोक में, अलग अलग देवगण देवता लोक में हम जाएंगे, क्या फायदा? हमारा जीवन वेयर वी बिलोंग टू कृष्ण, और हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे तो जीवन व्यर्थ है। तात्पर्य आगे पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। समय का अपव्यय यानी कि बुद्धिमान नहीं है। भगवत भक्त चतुर क्यों होता है? क्योंकि वो समय बिगाड़ता नहीं है। जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण
जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनि में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। यह मनुष्य जीवन सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। इसलिए कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। बार बार भागवत हमें जगाता है, बार बार ऋषि मुनि यही विषय के बारे में चर्चा करता है। परीक्षित महाराज को सुना रहा है, लेकिन हमारे जैसे कई लोगों का कल्याण होता है। आज परीक्षित महाराज ने एक गलती नहीं की होती, आज परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नहीं मिले होते, आज सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवत नहीं सुनाई होती, तो आज हम भी ये जैसे गेहूं का आटा बन जाता है, ऐसे जीवन का लक्ष्य समझे बिना मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुत्ते पशु की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह। क्योंकि ये भागवत जो है ये इसमें से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का एक दवा है। ये आध्यात्मिक अस्पताल है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा इस्कॉन मंदिर आध्यात्मिक अस्पताल है। यहां से हम हर एक जीवों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंद करने के लिए, इसका मतलब हमारा जंग माया के साथ, और माया के साथ जंग तभी जीता जा सकता है माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव, ओनली मी, भगवान कृष्ण कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मनुष्य जीवन ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। क्योंकि कर्म फल ये कर्म क्षेत्र जगत है, कुछ भी सही कर्म करो तो पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा, गलत कर्म करो इसका दंड मिलेगा और नरक लोक मिलेगा। तो कुछ भी काम करोगे कहीं भी, जब तक हमें शास्त्र के नीति नियमों नहीं मालूम, जब तक हमें दिशा नहीं मालूम है, जब तक हमें एंकर सही नहीं है, तो हम समय के बहाव हमें नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि जो साधुगण, जो संतगण व्यक्ति को भौतिक समस्याओं में उलझे रहने का आशीर्वाद देता है, तुम्हारी नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी शादी नहीं होती शादी हो जाएगी, तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद देता है, तो प्रभुपाद जी ऐसे साधुओं को गाली दिया है, क्योंकि वो जीव का हितकारी मित्र नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने वाला नहीं है। तो बाहर निकालने का वाला व्यक्ति वो है कि उसकी आत्मा ने क्या गलती की ताकि उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है, और कैसे ये कष्ट से बाहर जा सकते हैं। जैसे एक पैरासीटामोल है, बुखार आता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, तो वो पैरासीटामोल में ऐसा वैज्ञानिक तत्व, केमिकल तत्व है कि जिससे हमारी बुखार ठीक हो जाती है। कौन कहता है? डॉक्टर कहता है, हम मान लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते अरे भाई हम तो वैष्णव है ये नहीं ले सकते, कोई कहेगा हम तो मुस्लिम है ये नहीं ले सकता, हम तो क्रिश्चियन है ये दवाई नहीं ले सकता। क्योंकि दवाई शरीर के लिए कॉमन है, हर एक शरीर का इलाज करती है, वो उसका तुम्हारा क्या बिलीफ है, तुम्हारा क्या फेथ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह भवसागर का रोग भगवान के नाम की दवा के साथ लेना चाहिए। उसमें तुम क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, दूसरा फेथ के हो, दूसरे देवी देवता को मानते हो, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेंगे तो ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दवा का इलाज होगा। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु तो हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के
निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवत गीता 9:27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो हमारा कर्म है यज्ञार्थात्, यज्ञ यानी कि भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यावलोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। हम जैसे एक हाईवे पे पसार होते हैं, हम हाईवे पे पसार होते हैं, रास्ते में हमने कोई एक्सीडेंट को देखा, तो एक्सीडेंट को गाड़ी धीमी करके हमने एक्सीडेंट को देखा, हम मदद कर सकते तो ठीक है, नहीं मदद कर सकते तो एक हादसा का अनुभव करके हम वहां से चले जाते हैं। चलने के बाद जहां पहुंचते हैं वहां जिसको मिलते हैं तो वो एक्सीडेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि आज तो हमारे सामने हमने देखा इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो जो चीज हमारी आंखों के समक्ष आ गई उसका हमने तुरंत उसके बारे में, उस विषय में बोलना शुरू कर दिया, प्रजल्प। तो उसको विकल्प के, संकल्प के दृष्टि से कैसे करें कि हमें साधु गुरु शास्त्र मिले हैं, जैसा शास्त्र पढ़ा, जैसे भगवान का नाम का श्रवण किया, महिमा सुना, तो तुरंत महिमा दूसरों को बताना चाहिए। जैसे एक गाय खाना खाती है, खाना खाने के बाद वागोड़ती है, हमारे गुजराती में कहते हैं वागोड़ती है। तो वागोड़ का मतलब है वो खाना खाने के बाद फिर मुंह में सब खाना लाके फिर चबा के फिर वो बैठती है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान का नाम और कीर्तन करते हैं, भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं, फिर उसको वागोड़ना चाहिए, फिर दूसरों को बताना चाहिए। तो दूसरों को हम तब बता सकते हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस में हमने वो एक्सीडेंट देखा तो एक्सीडेंट के बारे में चर्चा की, हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान की महिमा पहुंच गई। तो भगवान की महिमा कॉन्शियसनेस में कैसे पहुंचेगी? तो उसके लिए हम कभी कभी क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास में लोगों को लगेगा कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम क्लास में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। जब मन कहीं और है तो वो क्लास का क्या उपदेश था, क्या बात पर चली गई, हमें पता नहीं चलता और हम उसका फायदा, उसकी दिशा हम गंवा देते हैं। ठीक वैसे ही हम भगवान के नाम में एकाग्र नहीं होते तो उससे कुछ सुकृति मिल जाएगी, लेकिन कहने का मतलब जो नाम का प्रभाव है, नाम की महिमा है कि नाम हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकाल सकता है। तो वो नाम लेकर हमें भौतिक संसार के विषयों के लिए नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे 100 रुपया हमारे पास है, 100 रुपया है और रास्ते में चलते चलते 20 रुपया का सेल हो गया, 50 रुपए की चीज 20 रुपए मिल रही है, हम आकर्षित हो गए, अरे 50 की चीज 20 में मिलती है, चलो ले लो, 100 रुपया है ना मेरे पास, 20 रुपए की चीज ले ली, 20 रुपए की चीज ले ली, फिर आगे चले बोलेगा अभी 100 रुपया, अभी लाख रुपए की चीज 100 रुपये में मिल रही है, तो हम कैसे ले पाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो अभी 80 रुपया बच गए, हमने 20 रुपये खर्च कर दिए तो हमारे पास 80 रुपये बच गए। तो ठीक वैसे ही भगवान की नाम का उपयोग भौतिक चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। भौतिक चीजों में उपयोग करेंगे तो भगवान कहते हैं कि नाम चिंतामणि, नाम तो चिंतामणि, आप जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन फिर भगवान नहीं प्राप्त हो। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम में एकाग्रता, नाम के प्रति आसक्ति, नाम के प्रति महिमा, नाम के प्रति प्रेम जागृत करना है, लौल्यम, और वो भक्तों के संग में होगा। ये श्रीमद् भागवत के श्रवण से होगा। अगर ये श्रवण हमने एकाग्रता से नहीं किया तो अभी चलो टाइम हो गया, अभी प्रभु जी कब क्लास खलास करते उसकी राह देखते हैं, उसको भागवत की महिमा का पता नहीं है। आगे 5 मिनट 10 मिनट और ले रहा हूं। पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए।
इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। जैसे अगर हमने एकाग्रता भगवान की समझ ली तो हम नित्य स्मरण कर पाएंगे। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उसका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अभिन्न है। और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। भगवान के सानिध्य में रहेंगे। हम पथारी में सोते समय भी भगवान के सानिध्य में रह सकते हैं। भगवान को याद करके, मायापुर धाम के राधा माधव को याद करके, राधा श्याम सुंदर को याद करके, राधा गोविंद जी को याद करके हम रात को सोते समय भी राधा गोविंद धाम में रह सकते हैं। भले राधा गोविंद धाम में लॉक लग गया, फिर भी हम राधा गोविंद के पास बैठ सकते हैं पथारी में सोते समय भी। इतनी शक्ति हमें मन में हमने भगवान ने दी है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं अपनी रात सोने में और मैथुन में और नाशवंत विचारों में, कुटुंब भरण पोषण में। ये तो सब होने वाला है। समय भगवान भूखा जगाता है, सुलाता नहीं है। इसलिए ये तो समय जिसने जन्म दिया है वो सब कुछ नियंता है। माता की वुम में क्या वो पिता खिलाने गया था कमाकर कि माता की वुम में कुछ विटामिन डाल देना चाहिए, बच्चा पल रहा है? नहीं, भगवान ने पहुंचाया। क्या गाय का दूध कोई मनुष्य ने बनाया, कोई सांसारिक पिता ने बनाया? नहीं, वो तो भगवान ने कृपा करके गाय माता के द्वारा दिया। तो हर एक गेहूं का दाना कितने देवी देवताओं का ऋण है तब मिला। तो हर एक चीज भगवान प्रदान करते हैं, लेकिन हम अहंकारवश मशीन की तरह यंत्रवत शरीर चलाकर हम सोचते हैं कि मैं कमाता हूं और मैं मेरे पैसे का खाता हूं। और हम सोचते हैं अहंकार करके न हमारे अंदर कोई ताकत है कि हम शरीर से पैसा कमा सके, क्योंकि हम हमारे अंदर आत्मा की उपस्थिति के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसकी विचार इच्छा बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके साथ उसका अंदर बुद्धि लिए बिना वो उसका कार्य नहीं कर पाएगा। इवन भौतिक कार्यकलापों के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। और जो भगवान का भक्त है वो विशुद्ध बुद्धि में रहता है। वो भौतिक आवश्यकता, मिनिमम भौतिक आवश्यकता पूरी करके वो समय नष्ट नहीं करके आत्मा के प्रति जागृत रहता है। मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान की उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। भगवान तो आमंत्रित करते हैं, लेकिन हमें तो आईसीयू में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम अपना रोग लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर कैसे इसका इलाज करेंगे? जब हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो हमारा एक्चुअल इलाज नहीं होगा। तो वो कैसी दवा है? जो बिना गुरु अपना जीवन दवा लेना चाहता है वो क्या करता है? वो मेडिकल स्टोर में जाता है, बोलता है मुझे बुखार है, कोई दवा दे दो। तो वो टाइफाइड के बुखार की दवा दे सकता है, मलेरिया के बुखार की दवा से दे सकता है, कोई वायरल फीवर की बुखार की दवा दे सकता है। हर एक दवा अलग अलग। हमें कौन सा बुखार लग गया है, इसका इलाज तो जो इसका डॉक्टर है वो करेगा। तो जैसे भौतिक डॉक्टर पर विश्वास है, ठीक वैसे ही हमें आध्यात्मिक डॉक्टर पर विश्वास रखना है। भौतिक दवाई में विश्वास है कि ये दवाई खाने से मेरा बुखार चला गया, तो ठीक वैसे ही आध्यात्मिक डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है कि हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना, तो इसके अंदर हमारा पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर वायरल फीवर भी चला जाएगा, टाइफाइड फीवर भी चला जाएगा, मलेरिया फीवर भी चला जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चला जाएगा। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उससे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। चाहे वह जो भी हो,
इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। कई लोग आंशिक सफलता के पीछे भाग जाते हैं, आंशिक सफलता में लुप्त हो जाते हैं, लेकिन अंतिम सफलता यानी कि भगवान का नाम से हमें गुरु और भगवान की प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे वो गुरु महाराज वो अपने गरीब शिष्य के झोपड़ी में गए थे, तो उनको प्रसन्नता हो गई, तो उनका जीवन धन्य हो गया। अब वो तो भक्त आज दुनिया में नहीं रहा, गुरु महाराज गए थे, वो भक्त आज दुनिया में नहीं है। उनका बेटा मायापुर की कीर्तन मंडली में है, उनका बेटा, और आज भी गुरु महाराज उनको प्रेम करते हैं, उनके बेटे को, कि ऐसा संतान, ऐसी भक्ति कहीं और नहीं देखी। उनका बेटा उनके पिता से भी बढ़कर भक्ति कर रहा है, तो सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं। कर्मी की श्रेणियां, जो कर्मी है वो कर्मी की श्रेणियों वाला जो निष्णात है वो बढ़ावा देगा तो खुश हो जाएगा। ज्ञानी है वो कोई ज्ञानी मिल जाएगा तो उसको बढ़ावा देगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन हमें सभी बढ़ावों से खुश नहीं होना है। जब तक मेरे कृष्ण मेरे जीवन में नहीं है, जब तक कृष्ण मुझे याद नहीं आते, जब तक कृष्ण को मैं प्रेम नहीं करता, जब तक कृष्ण मुझे प्रेम नहीं करते, जब तक कृष्ण की मैं सेवा नहीं करता, जब तक कृष्ण ने भेजे हुए गुरु के आदेश का पालन नहीं करता, जब तक गुरु की प्रसन्नता नहीं मिलती, तब तक मेरे जीवन पशु का जीवन है। कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त, इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। हमारी यात्रा जो है आनंदमय अभ्यास, आनंद के बिना सुख नहीं हो सकता। तो इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा की गई है। महान अधिकारी श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि वो श्रीमद् भागवत पढ़ेगा, वो अपनी बुद्धि लगाएगा, जड़ बुद्धि लगाएगा। तो शुरुआत में आता, अरे परीक्षित महाराज बोलते ये तो धार्मिक राजा था, तो ये तो जंगल में गया, शिकार करने गया, राजपूत, तो वो भक्त कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने समाधि में बैठे हुए ये ऋषि मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ये भक्त राजा कैसे हो सकता है, ये परीक्षित। तो वो जो कर्मी अपने कर्म से बाह्य कार्यकलापों के, राजा के बाह्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत गलती किए हुए कार्यकलापों को देखेगा, तो उनको वो राजा की भक्ति नहीं दिखाई देगी। हाँ, वो कार्यकलाप प्रकृति के द्वारा करवाया, भगवान के द्वारा करवाया, ताकि आगे जाके उसको पश्चाताप करेगा वो राजा, राजपाट छोड़ देगा। हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपना जेब का पैसा नहीं छोड़ सकते, मंदिर में जाके जेब का पैसा नहीं छोड़ सकते। और वो राजा ने पूरा राजपाट छोड़ दिया और पश्चाताप किया कि मैंने ऐसी गलती की, और वो गलती के लिए वो आज हमारे पास श्रीमद् भागवत है। भगवान स्वयं हर एक घर में पहुंच रहे हैं भागवत के रूप में। भागवत जो है भगवान का वांग्मय रूप है, और प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत हर एक घर में पहुंचाने का अवसर, सुअवसर प्रदान हो रहा है। और ये भागवत का जिसको खोलकर गुरु की निष्ठा में सत्संग मिल जाए, वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य की लाइन भक्तों के संग में चर्चा करने को, पढ़ने को मिल जाए, उसकी महिमा तो भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है कि हम न धाते, अकारण कृपा कहते हैं इसको, कि हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है कि हम भगवान के महिमा, भगवान के विषय, भगवान के नाम के बारे में गुण चर्चा करें। ये भौतिक जड़ शरीर क्या कर सकता है। ये तो गुरु ने हमें भगवान का नाम दिया है, ये गुरु हमारे जीवन में आए हैं, ये गुरु ने हमें महामंत्र दिया है।
तो इसकी महत्ता हमें, इसकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए, और जितनी वैल्यू समझेंगे ना उसको बहुत संभाल कर रखेंगे। अगर हमारे पास पैसा सोना है, धन है, तो हम उसको बराबर संभाल कर रखते हैं, उसको फालतू जगह में नहीं रखते। ठीक वैसे ही हम भगवान के नाम में, नाम जप में हम एकाग्रता नहीं आती है, तो हमें नाम जप की महिमा समझनी पड़ेगी। जितनी महिमा, जितनी भगवान की करुणा, गुरु की करुणा, नाम की करुणा, नाम का हमारे पर अकारण कृपा हम समझेंगे, तो हम उस नाम को इतना छिपा के रखेंगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई भौतिक कलमश न हो, तब हम भगवान के साथ एकाग्र होकर नाम करेंगे। ये मुझे भी समझना है, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, लेकिन हम सब के लिए है कि नाम कितना कीमती है हमारे लिए, ये गुरु की कृपा से हमें मिला। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसके साथ में आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम देने जा रहा हूं। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है, ये हमारे गुरु महाराज जी होने जय पताका स्वामी आचार्यवाद गुरुदेव महाराज की कृपा है। इसमें कोई भी त्रुटि, गलती या क्षति है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्ण।